Hello students, good morning. How are you? Today's we are going to start urine formation in human. What is the process of urine formation in human beings? In previous video I tell you the structure of nephron, and I tell you nephrons are present in both kidneys in several millions number. These nephrons take part to form urine. Urine is the nitrogenous waste in human body. In our blood, many waste substances are present. These many waste substances are filtered by your kidney, and kidney form urine. When from circulatory system our blood reaches to the kidney, in this kidney a structure present here called nephron. These nephrons takes part the urine formation process. In previous video I tell you the structure of nephron and different parts of nephron. Nephron has its first part is called Bowman's capsule. That structure is cup-like structure, and Bowman capsule connect with a tube-like structure. This is called renal tubules. These renal tubules are divided in three parts: PCT, Henle's loop, and DCT. Henle's loop is a hairpin-like loop structure. These tubules, the last part of these tubules are connected with collecting duct, or this collecting duct collect urine and send to the urinary bladder through ureters. Bowman capsules have two arteries, efferent artery and afferent arteries. Efferent arteries are entered into the Bowman capsule and divided in minute several blood veins and form a bunch-like structure that is known as glomerulus. Impure blood entered in Bowman capsule through efferent vein, and when this blood is filtered, after it come out from Bowman capsule by renal artery. From renal artery it's come out from your kidney and sent to the circulatory system. The products which filter in Bowman capsule is glucose, amino acids, water, minerals, and urea. These filters reaches to renal tubules, and different processes are take place here. Then essential substances are reabsorbed and waste materials are remains in tubules, and after it these waste material reaches to the last part of renal tubules, and from collecting duct these are converted into urine. Then students, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने आपको ये यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी. इस प्रोसेस में आपने पिछले वीडियो में मैंने जब इसकी स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको बताई थी और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स भी आपको नोट करवाए थे. उसका डायग्राम भी हमने बनवाया था. मैंने आपको बोला था कि हमको डायग्राम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करना है और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर भी ड्रॉ करना है. यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 3 पार्ट्स को मैं बोल रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स प्लेस filtration, after it reabsorption, and last part of secretion.
फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ब्लड आपकी किडनी के अंदर इंटर करता है ट्यूब्स ब्लड वेन्स के थ्रू, वो ब्लड नेफ्रॉन में पहुंचता है और नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल पार्ट जो होता है उसके अंदर वो फिल्टर्ड होता है और फिल्टर होकर उसका जो फिल्ट्रेट्स होते हैं वो बोमन कैप्सूल में अलग निकल जाते हैं और प्योर ब्लड जो होता है उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट होते हैं ये रीनल ट्यूबल्स में पहुँचते हैं और रीनल ट्यूबल्स के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वेस्ट मटेरियल्स को रिमीन्स कर दिया जाता है रीनल ट्यूबल्स के अंदर। वेस्ट मटेरियल ट्यूबल्स के अंदर आगे गो हेड जाते हैं और आगे जाकर फिर कुछ और ब्लड वेन्स इसके साथ कनेक्ट होती हैं, अटैच होती हैं नेफ्रॉन के साथ। तो वो ब्लड वेन्स के अंदर अगर उस ब्लड में कोई और भी वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है तो वो उसको सीक्रेट कर देती है ट्यूबल्स के अंदर और फिर ये ट्यूबल्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है ये कहलाता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूरिन बोल सकते हैं। और ये यूरिन स्लोली पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे और उस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर फिर दोबारा से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आप लोग ध्यान से दोबारा से डायग्राम को देखो और डायग्राम को अगेन फॉर्म करने की कोशिश करो। ये इसकी कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जिसको आपने क्या बोला था, बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल जो होता है वो आगे रीनल ट्यूबल्स के साथ अटैच होता है और रीनल ट्यूबल्स के साथ अटैच होकर ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे और इसको ड्रॉ करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो आपको बोला था मैंने अभी, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, और उस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसको क्या बोला था, हेनले लूप। हेनले लूप के लिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे।
ट्राई करो बनाने की। ठीक है, यहाँ तक इसको आप ड्रॉ कीजिए और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसकी मैं निकाल रहा हूँ बाहर। इस तरह से ड्रॉ कीजिए इसको यहाँ तक। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद फिर आगे हम देखते हैं। आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इस साइड में ले रहा हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं इनको। और इसको अगर ट्यूबलर बनाना हो तो थोड़ा सा इसको और ऊपर ले सकते हैं। ट्यूबलर अगर इसको थोड़ा सा और बनाना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से। ये और यहाँ पे ये आपको कनेक्ट कर देनी है किसके साथ? कलेक्टिंग डक्ट के साथ। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई आपकी। ठीक है ना। इसमें बोमन कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर थी, बोमन कैप्सूल के अंदर एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कौन? ब्लड वेन्स। और ब्लड वेन्स जो बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसके अंदर एंट्री करती हैं ब्लड वेन्स। इस तरह से ब्लड वेन्स इसके अंदर एंट्री करती हैं। यहाँ से तो इसके अंदर इम्प्योर ब्लड एंटर करता है। क्या करता है? इम्प्योर ब्लड एंटर करता है। और यहाँ से इसके अंदर से प्योर ब्लड एग्जिट होता है। क्या होगा? प्योर ब्लड एग्जिट होगा। ठीक है ना। अब देखो, ये एफरेंट आर्टरी और ये इफेरेंट आर्टरी कह सकते हैं, चाहे वेन कह सकते हैं। ठीक है ना। इधर नोट कर देता हूं मैं।
यहाँ पे इफेरेंट आर्टरी। ये क्या होता है, इसको क्या बोलोगे आप, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और ये स्ट्रक्चर जो होगी इसको क्या बोलोगे आप, बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे आप, बोमेन्स कैप्सूल। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको बोलेंगे आप क्या, ध्यान हो तो बताओ, पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको, पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पीसीटी है। और इसको क्या बोला था हमने, डीसीटी, ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और इसको क्या बोला था हमने, हेनलेस लूप। और ये है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, जिसको आप ये यूरेटर भी हो सकता है। और लास्ट में जाके कहाँ खुल जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में। लास्ट में जाके कहाँ खुल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म करनी है। आप आराम से ध्यान से चेक करते हुए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। Check every lines and saw where they are passes. Now we are start the process. अब हम इसकी प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमको इस जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोग देख रहे हो। ये क्या देख रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। मैं यहाँ से एक इसको पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, द प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन formation of urine, the process to formation of urine is carried out in three stages। यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर,
फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की जगह आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिख सकते हो, ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस तरह से होगा, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है ये नेफ्रॉन के पार्ट बोमन कैप्सूल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बोमन कैप्सूल के द्वारा होता है। बोमन कैप्सूल में कैसे होगा? ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ब्लड वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्लोइंग जो ब्लड होगा वो कंटिन्यूसली किडनी के अंदर जाता रहेगा और किडनी के अंदर ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरी होती है उसका डायमीटर तो होता है बड़ा और इससे बाहर लाने वाली जो आर्टरी है उसका डायमीटर है छोटा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब मोर ब्लड एंटर इन बोमन कैप्सूल एंड लेस अमाउंट ऑफ ब्लड come out from Bowman capsule results a blood pressure created in Bowman capsule। ये ब्लड प्रेशर जब बोमन कैप्सूल में क्रिएट हो जाएगा तो इस प्रेशर के कारण ड्यू टू दिस प्रेशर the substance which are present in blood are filtered and come out in Bowman capsule through glomerulus, ठीक है। यहां पर ये चीज समझ आ रही है? देखो नोट कर रहा हूं मैं, द ब्लड continuously flowing in the kidney, किडनी के अंदर जो ब्लड होगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कंटिन्यूसली ब्लड क्या करता रहेगा? चलता रहेगा, ठीक है ना। दिस ब्लड इज ब्रॉट बाई द रीनल आर्टरी। ये जो ब्लड होता है ये रीनल आर्टरी, इनको हम रीनल आर्टरी जनरली बोल सकते हैं, ठीक है ना। दिस ब्लड, ये जो ब्लड है किडनी के अंदर किसके द्वारा लाया जाएगा? दिस ब्लड इज ब्रॉट बाई रीनल आर्टरी। ये आर्टरी है, ये ब्लड को ला रही है किडनी के अंदर, ठीक है ना। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर लिया और किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में के अंदर ये जो आर्टरीज होंगी ये इस वेस्ट वाले ब्लड को, अब इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या है, क्या मिला हुआ है? एंड कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट। इसके अंदर क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ पर आएगा? किडनी के अंदर आ जाएगा। अब देखो किडनी के अंदर आकर ये एफेरेंट आर्टरी कहाँ पर एंटर कर रही है? बोमन कैप्सूल में, और बोमन कैप्सूल में एंटर करके ये बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, द एफेरेंट आर्टरी enters in Bowman's capsule and form
ए बंच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर जो बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है वो क्या कहलाएगी, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा, द फिल्ट्रेशन ऑफ, मैं इम्प्योर ब्लड लिख दूं यहां पर, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, इम्प्योर ब्लड, द फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस, एंड फिल्टर्ड, और क्या क्या फिल्टर हो जाएगा बताओ, एंड फिल्टर्ड ग्लूकोज साल्ट अमाइनो एसिड्स कॉमा मिनरल्स वाटर विद यूरिया एटसेट्रा। और भी अगर कोई वेस्ट मटेरियल होगा तो भी वो निकल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे नाम में लिख रहा हूँ, ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, वाटर विद यूरिया, ये सब फिल्टर्ड हो गए, ठीक है ना। अब सब फिल्टर हो गए तो फिल्टर होकर इनका कलेक्शन कहाँ हुआ, दीज आर कलेक्ट्स इन बोमेन्स कैप्सूल। कहाँ पर है, कलेक्ट हो गए बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर ये सारे के सारे फिल्ट्रेट कलेक्ट हो चुके हैं। अब देखो डायग्राम पर देखो, एफेरेंट आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है बोमेन कैप्सूल में, ठीक है ना। और इफेरेंट आर्टरी इस बोमेन कैप्सूल से प्योर ब्लड को ले जाती है और आपके सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर डाल देती है। अब यहाँ पर इसकी प्रोसेस समझने की कोशिश करो। एफेरेंट आर्टरी का जो ये डायमीटर आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसका डायमीटर इसके डायमीटर से बड़ा है। द डायमीटर ऑफ एफेरेंट आर्टरी इज more than efferent artery, so more blood enters into the Bowman capsule and less amount of blood come out from the Bowman capsule. Due to it, blood pressure created in glomerulus, क्योंकि efferent artery इसके अंदर इंटर कर गई तो several minute कैपिलरीज में डिवाइड होकर एक बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और वो बंच लाइक स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हो ग्लोमेरुलस। और जब मोर ब्लड इसके अंदर इंटर कर जाएगा तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो छोटी छोटी रक्त वाहिनी है, ब्लड वेन्स हैं, इन ब्लड वेन्स से फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर से ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड, मिनरल, वाटर, यूरिया, ये सब के सब फिल्टर्ड होकर देखो इस जगह पर आ जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये वाली जगह बोमन कैप्सूल की है और ये अंदर वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये ग्लोमेरुलस की है। तो ये फिल्टर्ड सब यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर फिल्ट्रेट कलेक्ट हो चुके हैं। अब फिल्ट्रेट यहाँ पर जब कलेक्ट हो जाएंगे तो ये फिल्ट्रेट यहाँ से फिर पास होंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे
क्यों? क्योंकि बोमन कैप्सूल का जो लोअर पार्ट है वो अटैच है किसके साथ? रीनल ट्यूबल्स के साथ। रीनल ट्यूबल्स कहाँ है? ये सब जो आपको ये ट्यूब लाइक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? रीनल ट्यूबल्स। ये क्या कहलाती है? रीनल ट्यूबल्स। इस रीनल ट्यूबल्स में ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट पास होकर आगे बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ है कि किडनी के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लोइंग होता रहेगा और ये जो ब्लड है रीनल आर्टरी के द्वारा जो मेटालिक वेस्ट को कंटेन करता है उसको लेकर रीनल आर्टरी वेस्ट वाले ब्लड को लेकर रीनल आर्टरी किडनी के अंदर पहुंच जाएगी। और किडनी में कौन प्रेजेंट है? नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन के अंदर जब ये ब्लड पहुंच जाएगा वेस्ट वाला, तो एफेरेंट आर्टरी इसको लेकर कहाँ आ रही है? बोमन कैप्सूल में। और बोमन कैप्सूल के अंदर एफेरेंट आर्टरी डिवाइड हो जाती है सेवरल मिनट कैपिलरीज में, जो एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और उसको क्या बोला है मैंने यहाँ पर? ग्लोमेरुलस बोला है। ठीक है ना, ग्लोमेरुलस बन गया। अब द फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। अब इसके अंदर जो इम्प्योर ब्लड आ गया है उसका फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होगा? ग्लोमेरुलस के द्वारा होगा। ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर्ड होगा और फिल्टर्ड होगा उसके अंदर कौन कौन से फिल्ट्रेट पहुंचेंगे? फिल्ट्रेट पहुंच रहे हैं ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड, मिनरल, वाटर विद यूरिया। ठीक है ना। और ये कहाँ पर आकर कलेक्ट हो गए? यहाँ पर बोमन कैप्सूल में। कहाँ पर आकर कलेक्ट हो गए? ये इस जगह पर आ गए बोमन कैप्सूल के अंदर। समझ आ रहा है बात? इसके बाद बोमन कैप्सूल में ये आ गए और यहाँ से ये कहाँ के लिए पास हो जाते हैं? बताओ कहाँ के लिए पास हुए हैं? दीज फिल्ट्रेट देन पास थ्रू द रीनल ट्यूबल। दीज फिल्ट्रेट्स देन पास थ्रू रीनल ट्यूबल। रीनल ट्यूबल वो दिख ही रही है, कॉल्ड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आपको। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या होगा? री एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? री एब्जॉर्प्शन। अब री एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो रीनल ट्यूबल्स के अंदर फिल्ट्रेट पहुंचे हैं उन फिल्ट्रेट्स के अंदर आप गौर से देखिए कुछ सम सब्सटेंस आर इसेंशियल। वहाँ पर कुछ जो पदार्थ हैं वो आवश्यक हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए। अब इन न्यूट्रिएंट्स को रोकने के लिए रीनल ट्यूबल्स में कौन सी प्रोसेस होने जा रही है? रीनल ट्यूबल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है कौन सी? री एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस होने जा रही है? री एब्जॉर्प्शन। अब रीनल ट्यूबल्स के अंदर जितने भी यहाँ पर एसेंशियल सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा री एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे विदाउट वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को छोड़ के सबको क्या कर लिया जाएगा? री एब्जॉर्ब्ड। क्या कर लिया जाएगा? री एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाएगा। तो यहां पर इसमें लिखेंगे, यहां पर मैंने ये लिखी दिया है, ये फिल्ट्रेट देन पास थ्रू रीनल ट्यूबल्स। और ये जो रीनल ट्यूबल्स होती है ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलिया की बनी होती है। दिस की जगह लिखो द रीनल ट्यूबल। द रीनल ट्यूबल complete the renal tubules the walls of renal tubule are made
बाई क्यूबोइडियल एपिथीलिया क्यूबोइडियल एपिथीलिया। एपिथीलियम जो टिश्यू होता है उसकी बनी होती है क्या, रीनल ट्यूबल्स, और ये क्या करती है, दीज ट्यूबल्स कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब इन दिस ट्यूबल कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड, किस किस को कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कर लेगी बताओ, ये जो आपके पास एसेंशियल सब्सटेंस हैं, यूजफुल सब्सटेंस हैं, कौन कौन से हैं बताओ यूजफुल सब्सटेंस, ग्लूकोज, साल्ट, मिनरल, अमीनो एसिड, और अगर वाटर मोर अमाउंट में तो वाटर को भी, एंड वाटर इन सब को क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब्ड, एंड और कोई अगर इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस है, एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब किए हैं, फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आया था उसके अंदर से इन सारी की सारी चीज़ों का क्या कर लिया गया है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया है, क्या कर लिया गया है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, यूरिया बचा है, केवल वेस्ट मटेरियल क्या बचा है, यूरिया, और ये जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस को यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया गया है ये कहाँ जाएंगे अब बताओ, तो दीज रीएब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, दीज reabsorbed substance are replenished into the blood stream, दोबारा से रक्त के परिसंचरण में इनको डाल दिया जाएगा, जो एसेंशियल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया गया है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन किए जाते हैं, उन फिल्ट्रेट्स का 99% पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कितना परसेंट पार्ट, 99% पार्ट तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 1% पार्ट रिमेन होता है। अब 1% पार्ट जो रिमेन होता है वो कौन होता है, यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेनली वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर मुख्य रूप से जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या है, यूरिया, इसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है।
इसको दोबारा से क्या नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब यहाँ से देखो जो रीनल आर्टरीज हैं, इसके अंदर से ब्लड में फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया, तो यहाँ से प्योर ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब प्योर ब्लड को ये रीनल आर्टरीज लेकर वापस चली जाएंगी आपके सर्कुलेशन सिस्टम में। प्योर ब्लड को लेकर जो रीनल वेन्स हैं वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आप लेकर वापस चली जाएंगी, ठीक है ना। आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन द क्लीन ब्लड इज पास्ड टू द आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन द क्लीन ब्लड यानी कि साफ रक्त, द क्लीन ब्लड पास द क्लीन ब्लड passed to the देखो क्लीन ब्लड किसको कौन ले जा रही, इफेरेंट आर्टरी, इफेरेंट आर्टरी क्लीन ब्लड को लेकर कौन चले गए यहाँ से, इफेरेंट आर्टरी। ध्यान से देख लो उसको, ब्लड अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल यूरिया को रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया है, और वेस्ट मटेरियल को जब नहीं रीअब्जॉर्ब किया गया है तो वो तो वेस्ट के रूप में आपके रीनल ट्यूबल्स के अंदर बच जाएगा, ठीक है ना। अब जो एसेंशियल सब्सटेंस को लेकर जो क्लीन ब्लड है, सारे के सारे एसेंशियल सब्सटेंस आ चुके हैं ना ब्लड के अंदर। अब वो क्लीन ब्लड इन सभी के सभी एसेंशियल सब्सटेंस को लेकर इफेरेंट आर्टरी के द्वारा दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम में पहुँच जाएगा। ओके, अब देखो आपका जो न्यूट्रिएंट्स थे वो क्लीन ब्लड के साथ वापस जा चुके हैं, और यहाँ पर जो रीनल ट्यूबल्स है, इस रीनल ट्यूबल्स में ओनली जो रिमेन्स हैं वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। यहाँ पर ओनली रिमेन्स है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। अब हम आगे देखते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है ये आगे चलकर इसका किस तरह से कन्वर्सन होता है यूरिन के अंदर। तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। फिल्ट्रेशन को ठीक है, और थर्ड प्रोसेस लेके आते हैं इसके बाद, या फिर इसमें देखते हैं। क्लीन ब्लड पास हो गया और अनएब्जॉर्ब्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो क्या था, अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट प्रोडक्ट क्या था, यूरिया। अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट प्रोडक्ट क्या था, यूरिया, जो रीनल ट्यूबल्स के अंदर रिमेन्स होता है। तो यहाँ पर छोटी सी लाइन में लिख देता हूँ, इसी में ऐड करना अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट यूरिया रिमेन्स इन renal ट्यूबल्स। ठीक है, अब यूरिया ट्यूबल्स के अंदर रिमेन्स है ना ओनली। अब ये जो
रीनल ट्यूबल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, ये यूरिन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर मैं थर्ड प्रोसेस का नेम लिख रहा हूं सीक्रेशन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होगा? जो वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है, ये वेस्ट लिक्विड फॉर्म में है और ये वेस्ट लिक्विड फॉर्म में होते हुए किस में कन्वर्ट होना है? अब यूरिन के अंदर। किस में कन्वर्ट होना है? यूरिन के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे सच वेस्ट कंटेनिंग लिक्विड फॉर्म, सच वेस्ट कंटेनिंग इन लिक्विड फॉर्म क्या बनाएगा? यूरिन। ये जो वेस्ट है ये लिक्विड स्टेट में आकर किसका फॉर्मेशन कर देगा? यूरिन का। द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इज ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा और हम देखते हैं कि जो ये रीनल ट्यूबल्स हैं, इन रीनल ट्यूबल्स से बहुत सारी इस तरह से ब्लड वेन्स अटैच होती हैं। और अगर कोई और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर रिमेन्स है तो वो जो यहाँ पर ब्लड वेन्स इसके साथ अटैच है वो डायरेक्टली रीनल ट्यूबल के अंदर उस वेस्ट मटेरियल को सीक्रेट कर देती हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इफ एनी वेस्ट रिमेन्स इन ब्लड that is directly secrete in renal tubule by blood veins। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेन्स इसके साथ अटैच होती है। अगर और कोई वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर बचा है तो उसको ब्लड वेन्स सीधे डायरेक्टली कहां पर सीक्रेट कर देती हैं? रीनल ट्यूबल्स के अंदर। और यहां पर अगर ऐसा लगता है कि जो लिक्विड वेस्ट आपका यूरिया जा रहा है, लिक्विड वेस्ट जो यूरिया जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा उसकी सोल्युबिलिटी डाउन हो गई है, यानी कि वो गाढ़ा हो गया है, ठीक है ना, वो कंसंट्रेट है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ अमाउंट में वाटर को भी यहाँ पर सीक्रेट कर दिया जाता है। कुछ अमाउंट में वाटर को यहाँ पर सीक्रेट कर दिया जाता है जिससे कि वो जो कंसंट्रेट वेस्ट मटेरियल है यूरिया वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। इसलिए इस फॉर्म को बोलते हैं हम सीक्रेशन। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन, द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन, यूरिन को नेफ्रॉन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेड, बताओ किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इसको? टू द कलेक्टिंग डक्ट, टू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के लिए इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से यूरिन जो है कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है? इस कलेक्टिंग डक्ट को। तो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये यूरिन आता है।
अब देखो यहाँ पर एक नेफ्रॉन है, यहाँ पर नेफ्रॉन है, यहाँ पर है, इतने सारे नेफ्रॉन्स इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सबसे यहाँ से यूरिन आता है और ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कलेक्शन होता है। कलेक्शन होकर ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पर पहुँचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पर पहुँचेगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम लिखते हैं फ्रॉम वियर यूरिन इंटर्स इन यूरेटर, जहाँ से फ्रॉम वियर यूरिन इंटर्स इनटू द यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन कहाँ पहुँच गया? यूरेटर में पहुँच गया। और अब यूरेटर से कहाँ पर पहुँच जाएगा? बताओ। यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पर पहुँच जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड यूरेटर opens in the bladder। यूरेटर कहाँ पर ओपन हो गए? ब्लैडर में। हेयर यूरिन कलेक्टेड, यहाँ पर यूरिन का क्या किया जाएगा? कलेक्शन। यहाँ पर यूरिन इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना। अब जब ये ब्लैडर कंप्लीट फिल हो जाएगा, यूरिनरी जो ब्लैडर है ये अगर कंप्लीट भर जाता है, फिल हो जाता है, कंप्लीट फिल हो जाता है, तो यहाँ से जो आपका CNS है वो CNS सिग्नल भेजेगा आपके ब्रेन को। ठीक है ना। कहाँ पर किसको भेजेगा? ब्रेन को। व्हेन एनफ यूरिन accumulated in bladder, जब पर्याप्त मात्रा में ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा हो जाता है, the CNS send a signal to the bladder। the CNS send a signal to the bladder। तो ब्लैडर के लिए जो आपका सिग्नल वो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एक सिग्नल भेजेगा। और सिग्नल जब भेजेगा तो जो आपका जो ये ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर एंड। यहां पर क्या प्रेजेंट है? मैंने पहले बताया था, स्फिंक्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स आर रिलैक्स। स्फिंक्टर्स कैसे हो जाते हैं? रिलैक्स। एंड और यूरिन कम आउट थ्रू यूरेथ्रा। और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस हो गई आपके यूरिन फॉर्मेशन की ह्यूमन बीइंग्स में। तो मैं आपको दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मेड बाय द क्यूबोडियल देखो, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, सीक्रेशन की प्रोसेस, तीनों के तीनों प्रोसेस के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? आपकी जो किडनी है उस किडनी के अंदर
ये नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। तो रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को जिसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको लेकर किडनी के अंदर इंटर करेगी, किडनी में इंटर करेगी तो वहाँ से ये जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल वाला जो ब्लड है ये कहाँ पर पहुँचेगा, एफेरेंट आर्टरी के थ्रू बोमन कैप्सूल के अंदर पहुँचेगा। ये एफेरेंट आर्टरी इस बोमन कैप्सूल के अंदर बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जब ब्लड इसके अंदर पहुँचेगा तो इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण इसके अंदर से जितने भी सब्सटेंस ब्लड में सोल्यूबल हैं वो सब के सब फिल्ट्रेट होकर बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे। बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद जो प्योर ब्लड बचेगा उसको एफेरेंट आर्टरी लेकर आपके सर्कुलेशन में डाल देगी। यहाँ के बाद ये हो गया फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो भी सब्सटेंस फिल्ट्रेट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट, मिनरल्स, वाटर एंड यूरिया, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे फिल्ट्रेट कलेक्ट हैं बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल से फिर ये फिल्ट्रेट पास होते हैं रीनल ट्यूबल्स की ओर। रीनल ट्यूबल्स में ये जो जितने भी फिल्ट्रेट हैं वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिसको बोला है हमने रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोला हमने, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये रीनल ट्यूबल्स होती है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो वॉल्स क्यूबोइडियल एपिथेलिया टिश्यू की बनी होती हैं। अब क्यूबोइडियल एपिथेलिया जो टिश्यू होता है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में इसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर जितना भी फिल्ट्रेट ये है इस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जैसे ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड, मिनरल्स, वाटर, उन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वेस्ट मटेरियल इसके अंदर रिमेन्स रह जाता है, ठीक है ना। और जितने भी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो रीअब्जॉर्ब हुए हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंस को अगेन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। अब आपकी ट्यूबल्स के अंदर ओनली यूरिया रिमेन्स है। ये यूरिया जो होता है ये कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है सीक्रेशन। अब ये जो लिक्विड वेस्ट यूरिया है ये आपकी रीनल ट्यूबल्स के अंदर उपस्थित है और यहाँ पर ये रीनल ट्यूबल्स जो होती है ये रीनल ट्यूबल्स किसके साथ अटैच होती है, इसके साथ बहुत सारी ब्लड वेन्स अटैच होती हैं। तो अगर कोई और वेस्ट ब्लड के अंदर रिमेन्स है तो वो वेन्स जो होंगी उस ब्लड के अंदर से उस वेस्ट मटेरियल को और इसके अंदर क्या करेंगी, सीक्रेट कर देंगी। और यदि यहाँ पर जो यूरिन है वो यूरिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई है, अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो उसकी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए कुछ अमाउंट में यहाँ पर वाटर को भी सीक्रेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल यूरिन होता है वो इस रीनल ट्यूबल्स के जरिए कहाँ पर पहुँचता है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। कलेक्टिंग डक्ट किसके साथ कनेक्ट है, यूरेटर के साथ, और यूरेटर अटैच होता है किसके साथ, ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट कर लिया गया है। जब इनफ अमाउंट में यूरिन ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल के द्वारा उस ब्लैडर में जो स्फिंक्टर लगे हुए हैं मसल्स के बने हुए, वो मसल्स स्फिंक्टर्स आर ओपन्स, वो खुल जाते हैं और यूरेथ्रा के जरिए हम यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ये पूरी की पूरी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है जो आपने इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर पढ़ी है, देखी है। तो आप इसको नोट करें और थोड़ा सा ध्यान से चेक करें और डायग्राम के थ्रू इसे हम मैच करके देखें और डायग्राम में जिस स्टेप पर पहुँच रहे हैं उस स्टेप पर डायग्राम में चेक करें और उसके द्वारा ही हम इसको ईजी वे में हम इसको लर्न
कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी एंड गो इन कमेंट बॉक्स एंड कमेंट्स टू मी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, आपको मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है ना? ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।